Good evening, everybody. Bache, I hope everybody is doing well. Bache, in the previous class, we had revised Human Eye and Colorful World. और उससे रिलेटेड एक जो टेस्ट था मैंने ग्रुप में अपलोड भी कर दिया था मैथ्स ऑनलाइन ऐप पे. सो आई होप आप में से काफी सारे बच्चों ने उसको ट्राई किया होगा. व्हाट आई सॉ yesterday was it was only about 5 or 6 students who had attempted. ठीक है, so there is no as such there is no time limit. तो अभी अगर आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो दैट्स ऑल राइट. मैंने कल के बाद नहीं देखा था कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है. I'll just see it through how many of you have gone through. But I think जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा उनको वो क्वेश्चंस जो हैं काफी उन्होंने सही भी किए हैं. I think the highest that I saw was 36 out of 50. 36 were correct, 14 were wrong. जो मैंने कल देखा था. ठीक है ना. Rest I have not seen them today. What you have done or not. ठीक है, तो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो दैट्स वेरी गुड. अगर नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन एंड अटेम्प्ट इट. ठीक है, देयर आर अबाउट 50 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इन दैट टेस्ट. ऑलराइट, सो बच्चे एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास वी विल बी नाउ बिगिनिंग अप विद आवर रिवीजन. अपनी रिवीजन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स. इसकी हम रिवीजन शुरू करेंगे आज. ठीक है. So this is the second chapter of your chemistry, and I think bache I have also shared with you the mark split up. Chemistry portion in your term 1 exam, it will have a weightage of 16 marks because you are going to have 3 chapters: chemical reaction and equation, acid basis salt. They both are complete. इनमें कोई portion cut नहीं है. The third chapter metals and non-metals, उसमें बाद वाला portion जो है वो कट है, सिर्फ initial portion आ रहा है. So in chemistry you have about 2.5 chapters और weightage जो है वो है 16 marks की, 1/6. Physics is of 14 marks, 1/4. That is light chapters with exclusion of human eye and defects, वो exclude हुआ है. बाकी सारे दोनों chapter में सारे portions हैं. And in bio you only have life processes for term 1. और लाइफ प्रोसेस की जो अकेले वेटेज है 1 चैप्टर, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. ओके, सो दैट इज द स्प्लिट. और बच्चे जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें एसिड बेसिस सॉल्ट्स का जो पोर्शन है दैट इज गोइंग टू हैव योर मैक्सिमम क्वेश्चंस. एसिड बेसिस सॉल्ट में ज्यादा केमिकल रिएक्शंस है, थ्योरी भी ज्यादा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो वी विल बी फर्स्ट रिवाइजिंग दिस. Okay, not as much time as we spent in the earlier day when we were doing it for the first time. थोड़ा जल्दी करेंगे. Major इसके जो topics हैं उनको revise करेंगे. And if you have doubt in any portion, then you can ask. All right. So बच्चे, when you talk about acid, bases and salts, acid, bases, salts किसकी classification है? It is classification of chemical compounds. And this classification is done on the basis of physical and chemical properties. More specifically कहूं तो chemical properties के basis पे है, on the basis of their chemical reactions and the type of ions that they form in water. We have classified them into acid, bases and salt. तो बच्चे जो acid, bases और salt की definition है वो हम बाद में करेंगे. Initially आज जो हम शुरू करेंगे, we are going to talk about indicators. We are going to talk about indicators. अब बच्चे, when we talk about indicators, what are indicators? You can say they are substances. You can say they are substances which help to test whether substance is acidic, basic or neutral. जैसे बच्चे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, acids are sour in taste. Acids are sour in taste. Bases are bitter. But the problem is बच्चे, हम किसी भी unknown substance को उठा के टेस्ट नहीं कर सकते. उसके पीछे रीजन ये है, that unknown substance might be very corrosive. It can cause injury. Secondly, it can be toxic as well. So if there is any unknown substance, just to determine its nature, whether it's acidic, basic or neutral, you cannot simply taste it. Okay, so that means you need to have a aid method
to judge whether the given substance is acidic, basic or neutral. तो उसकी वजह से कि हमें बच्चे अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है, हमारे पास ऐसे बहुत सारी और पर्टिकुलर एड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो हमें हेल्प करेंगे जज करने में नेचर को. और इन केमिकल सब्सटेंसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. सो बच्चे जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो जनरली अपना कलर चेंज करते हैं, दे चेंज देयर कलर. पर बच्चे कुछ इंडिकेटर्स हम ऐसे भी करेंगे जो स्मेल चेंज करते हैं, they are known as olfactory indicators. And why are we putting olfactory indicators into our chapters? क्योंकि बच्चे there might be certain students who have visual impairment, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें देखने में, तो हमें olfactory indicators भी इंक्लूड करते हैं हम, ताकि जिन लोगों को विजुअल इंपेयरमेंट है they can also judge whether substance is acidic, basic or neutral. All right, okay. तो देवादत्तन ने सारे लिस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, लिटमस पेपर, ऑल्फैक्टरी, अनियन, क्लव ऑयल, मिथाइल ऑरेंज, पीएच पेपर, फिनोप्थलीन एंड सो ऑन. ओके, चलो, तो देवादत्तन को सब कुछ आता है. सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू. वी डिवाइड इंडिकेटर्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स. बच्चे नेचुरल इंडिकेटर्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. इनको हम नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन की. द फर्स्ट इंडिकेटर दैट वी विल टॉक अबाउट इज लिटमस सॉल्यूशन. अब अच्छा, जब आप लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हो, लिटमस इज ऑब्टेन्ड नेचुरली. लिटमस सॉल्यूशन, इट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम लाइकन्स. एंड बच्चे, व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स क्या होते हैं बताइए, एनीबॉडी? व्हाट आर लाइकन्स? हम बोल रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन इट इज ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम लाइकन्स. लाइकन्स क्या होते हैं बच्चे? लाइकन, ओके जस्ट अ मिनट. हाँ जी बेटा बोलो. ओके, व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. अब अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक का मतलब है बेनिफिशियल फॉर बोथ. दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ. दोनों के लिए क्या है? बेनिफिशियल है. तो बच्चे इसके अंदर क्या होता है? एल्गी और फंजाई ये आपस में कंबाइन होते हैं और उससे लाइकन बनता है. और बच्चे लाइकन से हमें जो नेचुरल इंडिकेटर मिलता है दैट इज लिटमस सॉल्यूशन. अब बच्चे लिटमस का अगर आप बात करो, ये इसका नेचुरल कलर क्या है? लिटमस का नेचुरल कलर है पर्पल. इट इज पर्पल इन कलर. Litmus solution is purple in color. अब अच्छा, when it comes in contact with a base, it turns blue. बेस के साथ इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू. एंड विद एसिड it turns red. एसिड के साथ क्या कलर हो जाता है? रेड कलर. तो बच्चे this is one thing that we observe. Litmus is a natural indicator. Natural color is purple. In acidic solution it turns red. In base it turns blue and it is obtained from lichens. Another very common natural indicator that we use is turmeric. Turmeric बच्चे हम spice की तरह भी use करते हैं खाने में. It is a common cooking ingredient. Indian food में तो बहुत ज्यादा use होता है turmeric. अब बच्चे turmeric की जब हम बात करते हैं, turmeric का जो natural color है, it is yellow in color. Turmeric is yellow in color. अब बच्चे when turmeric comes in contact with the base, जब ये base के साथ contact में आएगा, जैसे for example if you are eating any सब्जी और करी and it falls on your clothes, तो वहां एक येलो स्टेन हो जाता है. येलो स्टेन ऑफ टर्मरिक. तो जब बच्चे हम कपड़े को धोते हैं, on coming in contact with soap or detergent which is basic, it turns reddish orange.
All right. Turmeric, which is yellow in color, on coming in contact with basic substance turns reddish orange. So बच्चे टर्मरिक को आप बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हो. तो बेसिक सब्सटेंस जैसे इट कैन बी सोप सोल्यूशन और डिटर्जेंट, उसके साथ जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा सो इट विल चेंज इट्स कलर टू रेडिश ऑरेंज. बच्चे व्हाट अबाउट एसिड? अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ आप इसे टेस्ट करोगे, नो चेंज. एसिडिक सब्सटेंस के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं है, इट विल रिमेन येलो. न्यूट्रल में भी ये येलो ही रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा. इट विल चेंज कलर ओनली विद बेस. उसके बाद हाइड्रेंजिया. हाइड्रेंजिया सॉरी, नॉट हाइड्रेंजिया, हिबिस्कस. ओके, हिबिस्कस इज बच्चे कॉमनली नोन एज चाइना रोज. बहुत कॉमन एक फ्लावर है ये. इट ग्रोज इन द गार्डन्स. ओके, इट इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. अब बच्चे जब आप चाइना रोज की बात करते हो विच इज हिबिस्कस, इसके पेटल्स को अगर आप बॉइल करो, बॉइल दी पेटल्स, if we boil the petals, if we boil the petals, you can get a red color extract. पेटल्स को आपने बॉईल करना है 20-25 मिनट्स के लिए. तो बच्चे जब पेटल्स बॉईल होंगे पानी में तो वो ये कलर छोड़ देंगे. और कैसा कलर छोड़ेंगे? ये रेड कलर का, रेड कलर एक्सट्रैक्ट छोड़ेंगे इस पे. ऑलराइट. अब बच्चे ये जो रेड कलर का एक्सट्रैक्ट है, बच्चे इन अतिया इन एसिडिक सोल्यूशन, टर्मरिक विल नॉट चेंज कलर. टर्मरिक का कलर एसिडिक सोल्यूशन में चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल में भी चेंज नहीं होगा. इट विल ओनली चेंज इट्स कलर इन बेसिक सोल्यूशन. इज इट क्लियर? ऑलराइट. तो बच्चे जब आप हिबिस्कस की बात करते हो, हिबिस्कस का जो एक्सट्रैक्ट है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट इज रेड कलर. ओके, आप इसको बच्चे डालोगे, अगर मान लो लेट से आपने इसको एसिड में डाला, तो बच्चे इन एसिड इट विल टर्न मेजेंटा. मेजेंटा क्या है? डार्क रेड. इसका कलर मेजेंटा बन जाएगा विच इज डार्क रेड. एंड इफ यू पुट इट इन बेस, it will acquire pale green color. Okay, आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो. At homes also you can perform this activity. Hibiscus is very common. घर पे आप उसको बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट बना के टेस्टिंग कर सकते हो एसिड और बेसिस की. टर्मरिक एक अगेन एक बहुत कॉमन इंडिकेटर है जो घर पे प्रेजेंट होता है, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबडी? हाँ जी देवादत्तन. बच्चे कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? ओके, आई थिंक इट वाज बाय मिस्टेक. चलो, ऑलराइट. सो बच्चे अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और मैनमेड. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट सिंथेटिक और मैनमेड इंडिकेटर्स, इनकी यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा है. दे आर आर्टिफिशियली मेड केमिकल्स जिनको आप इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हो. और इनमें से कुछ इंडिकेटर तो बहुत कॉमन है एंड दे आर वेरी यूजफुल. फर्स्ट इज लिटमस पेपर. अब बच्चे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि लिटमस पेपर तो नेचुरल सब्सटेंस लिटमस का बना हुआ है, इसमें तो लिटमस सोल्यूशन है. आपको एक चीज ये याद रखनी है बच्चे, लिटमस को हम आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? लिटमस सोल्यूशन तो आपको सीधा डायरेक्टली लाइकन से मिला. पर जब हम बच्चे लिटमस सोल्यूशन की प्रोसेसिंग करके उससे लिटमस का पेपर बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? उसके कलर को चेंज करते हैं बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग. सो लिटमस पेपर जो है इट इज मेड बाय प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग. अब इसमें क्या होता है, अगर आप लोगे ब्लू लिटमस पेपर, इफ यू टेक ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एसिड में डालना है.
एसिड में डालेंगे तो बच्चे इन एसिड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज इट्स कलर, blue litmus will turn red. In acid, blue litmus will turn red. See, Arham, केमिकल इंडिकेटर्स जो है ना, सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स, इनमें जो सब्सटेंसेस हैं, दे हैव देयर ओन केमिकल फॉर्मूला एंड द शिफ्ट इन देयर कलर इट इज ड्यू टू इक्विलिब्रियम चेंज. आयंस की जो कंसंट्रेशन है उनके साथ क्या होता है, चेंज होती है, उसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है. पर बच्चे इनकी जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल फॉर्मूला है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वे बियॉन्ड आवर सिलेबस राइट नाउ. ठीक है, तो इनके केमिकल फॉर्मूला, इनके सिलेबस जो सॉरी इक्वेशंस हैं, वो हमें नहीं लिखनी, हमें सिंपली इंडिकेटर के कलर याद रखने. अगर इनमें इक्वेशंस होती तो बच्चे मैं आपको लिखवा ही देता अगर हमारे सिलेबस में होती, पर वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. आपको सिर्फ इंडिकेटर याद रखना है और उसके कलर चेंजेस को याद रखना है. क्लियर? ओके. सी अनीशा, मजेंटा कौन सा होता है? मजेंटा इज डार्क रेड. एक तो सिंपल रेड है, मजेंटा जो है बहुत डार्क रेड. ठीक है, ऑलराइट. So litmus will turn blue, litmus paper will turn red in acidic solution. बेस में क्या होगा? रेड लिटमस विल टर्न ब्लू. तो बच्चे इस तरीके से कलर चेंज होता है लिटमस पेपर में. उसके बाद है बच्चे फिनोप्थलीन, अनदर वेरी कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनोप्थलीन. अब बच्चे जब आप फिनोप्थलीन की बात करते हो, सिमरन सिमरन नेचुरल कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो. आप उसको बेस में डालोगे तो उसका कलर रेडिश ऑरेंज हो जाएगा, रेड ऑरेंज, डार्क कलर रेड विद ऑरेंज मिक्सचर. पर बच्चे अगर आप उसे न्यूट्रल में डालोगे या एसिडिक सब्सटेंस में डालोगे तो टर्मरिक का नेचुरल कलर चेंज होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन येलो. इज दिस क्लियर नाउ? इसके साथ बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. यू कैन टेक अ स्मॉल चार्ट पेपर, उसको एक छोटे ब्लॉक में काट लो, रेक्टेंगुलर पीस में, उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट बना के अप्लाई कर दो हल्का सा पूरे पेपर पे, लेयर टर्मरिक की पेस्ट की. लेट इट ड्राई इन द सन. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मेक अ सोप सोल्यूशन एंड विद हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक और अदर एनी स्टिक यू कैन पिक अप द सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, and drop by drop you can make a design on the litmus paper, sorry not litmus paper, turmeric paper. क्योंकि जहां जहां सोप सॉल्यूशन गिरेगा टर्मरिक क्या होगा, इट विल चेंज इट्स कलर. ठीक है, इज इट क्लियर? ये एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. चलो लेट्स टॉक अबाउट फिनोप्थलीन. बच्चे फिनोप्थलीन इज नेचुरली कलरलेस. फिनोप्थलीन का क्या कलर है? इट इज कलरलेस जस्ट लाइक वाटर. अब बच्चे अगर आप फिनोप्थलीन को एसिड में डालते हो, फिनोप्थलीन एसिड, इट विल रिमेन कलरलेस. अगर बच्चे हम फिनोप्थलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कलरलेस. पर बच्चे अगर आप इसको बेस में डालो, if you put phenolphthalein in base, what is going to happen? It is going to turn light pink. All right, so in phenolphthalein in basic solution it will turn light pink and in acidic solution it will remain colorless. All right, तो ये बचे आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर था. अब नेक्स्ट करते हैं बच्चे मिथाइल ऑरेंज. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है न्यूट्रल में इसका कलर ऑरेंज ही रहेगा. इन न्यूट्रल इट विल रिमेन ऑरेंज कलर्ड. एसिडिक में बच्चे इसका कलर क्या हो जाएगा? इन एसिडिक इट विल टर्न
if I am not mistaken, it will turn red. Okay, in acid it will turn red, and base it will turn yellow. So this is the change in color. Methyl orange at neutral pH orange, acidic range में red, basic में yellow. ओके तो बच्चे ये 3 कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में लैब में यूज करते हैं. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. बच्चे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं विच चेंज देयर स्मेल? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं? दे आर इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल. They change their smell in acidic and basic medium. Sorry, they will change their smell in basic medium only. Sorry, not in acidic medium. They will change their smell in basic medium. एसिडिक मीडियम में बच्चे वो अपनी स्मेल चेंज नहीं करेंगे. जो हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर स्मेल इन बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम, बट दे विल चेंज स्मेल इन बेसिक मीडियम. तो इसमें बच्चे एग्जांपल आएगा वेनिला एसेंस. बच्चे वेनिला एसेंस इज यूज्ड इन मेकिंग डिजर्ट्स, आइसक्रीम्स. वेनिला एसेंस जब डालते हैं तो बच्चे उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है. तो वेनिला एसेंस का अपना फ्रूटी स्मेल है. इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल. जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे द स्मेल विल चेंज. ओके, जैसे ही आप इसे बेस में डालोगे क्या होगा? द स्मेल इज गोइंग टू चेंज. अब अच्छा, व्हाट अबाउट एसिडिक सब्सटेंस? अगर आप इसको एसिडिक सब्सटेंस में डालोगे, नो बेस, नो स्मेल चेंज. ओके तो बच्चे ये सारे जो हमने लिखे हैं, वेनिला एसेंस, यू हैव क्लव ऑयल, ओके सो वेनिला एसेंस, क्लव ऑयल, ये जितने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं बच्चे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर स्मेल. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक मीडियम. पर बेसिक मीडियम में ये क्या करते हैं? अपनी स्मेल चेंज हो जाती है उनकी. ऑलराइट, तो अगेन दीज आर वेरी यूजफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, और यू कैन से विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स वो भी टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ कलर्स ही देखेंगे बच्चे तो कलर्स के साथ तो मुश्किल हो जाएगा. सो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स, दे कैन यूज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ऑलराइट, ठीक है. चलो अब बच्चे आगे चलेंगे. विल क्विकली मूव अहेड. अब बच्चे इंडिकेटर्स आर डन. इंडिकेटर हो गया है. अब बच्चे बात करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस. तो बच्चे यहाँ मैं थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी की बुक से अलग चलूंगा, जैसे जब मैंने आपको इनिशियली भी पढ़ाया था. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू डिफाइन एसिड्स. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स को सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. अब बच्चे व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर, यस अनीशा, उनकी स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है. खत्म तो मैं नहीं कह सकता, पर इनकी स्मेल चेंज हो जाती है. ओके आप इसे करके भी देख सकते हो घर पे. वेनिला एसेंस अगर है तो वो यूज कर लो, या क्लव ऑयल है, या आप अनियन के स्ट्रिप्स भी ले सकते हो. टेक अनियन स्ट्रिप्स, रैप देम इन अ कॉटन क्लॉथ. ओके कॉटन क्लॉथ में रखो. ओके जब आप इसे कॉटन क्लॉथ में रखोगे तो क्या होगा? अनियन की स्मेल आ जाएगी उसमें.
then you can test this with normal soap. Okay, chalo, अब let's try to understand what are acids. अब बच्चे when you talk about acids, हमने lower classes में acids की एक definition पढ़ी है. Acids are bitter in taste, corrosive तो वो होते ही हैं, bases भी corrosive हैं. पर बच्चे जब आप एसिड की बात करते हो, यू कैन नॉट सिंपली टच एन एसिड और टेस्ट इट. तो अगर आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एसिड है या इसका क्या यूज है? ओके, सो एसिड्स को बच्चे हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं केमिकली देखूं, दे आर सब्सटेंसेस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव H+ आयंस. ओके, इन aqueous solutions. What do we understand by the term aqueous solution? In aqueous solution, they ionize to form H+ or H3O+ ions. ओके, एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस हैं बच्चे? जिनको जब आप पानी में डिसॉल्व करो तो ये H+ आयन या H3O+ आयंस बनाते हैं. अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डेफिनेशन हम कैसे लिख रहे हैं. लेट्स से यू हैव HCl है बच्चे, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया. आई विल सिंपली राइट एक्वस हियर AQ. तो क्या होगा? H विल डिसोसिएट फ्रॉम Cl-, तो यू विल गेट H+ आयन प्लस Cl-. तो देखो हाइड्रोजन आयन बनाया है इसने, इस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है HCl ने. सो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड्स. अब बच्चे हाउ वी विल सी हाउ इट कैन फॉर्म H3O+ आयन. अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, यहां मेरे पास H+ आयन है. ओके, सो दिस H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अगर हम ये बोलें कि H+ आयन अकेला पड़ा रहेगा सोल्यूशन में, ऐसे नहीं हो सकता. व्हाट हैपेंस? दिस H+ आयन it will combine with water molecules, क्योंकि H+ आयन तो बन गया. ये H+ आयन क्या करेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर या सब्सटेंस के अंदर, उनके साथ कंबाइन होगा. ओके, और ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? H2O plus H+, तो it will form H3O+. okay, so any substance which on dissolving in water, it will produce H+ ions. okay, that substance will be known as acidic. okay, is this definition clear? All right, अब मुझे एक एग्जांपल और लेते हैं. लेट्स ट्राई टू पिक अप अनदर एग्जांपल. ये तो मैंने HCl का लिखा था. लेट्स से यू हैव H2SO4. अब बच्चे H2SO4 when dissolved in water, it will give me 2H+. देखो दो हाइड्रोजन है, तो it will give me 2H+ plus सल्फेट आयंस. ओके, तो सल्फ्रिक एसिड बचे सोल्यूशन में ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा गिवन वॉल्यूम में, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं. ऑलराइट, दिस इज द रीजन सल्फ्रिक एसिड इज आल्सो वेरी मच एसिडिक. तो बच्चे दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर. ऑलराइट, उसके बाद बच्चे हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड्स की. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स. ऑलराइट बच्चे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या मतलब है? These are acids which on dissolving in water completely dissociate. ये वो एसिड है कि आप इनको जितनी मर्जी क्वांटिटी में पानी में मिलाओ, वो क्या करेंगे? They will completely dissolve, dissociate. So strong acids are they are
एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? दे आर एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट. Strong acids are acids which completely dissociate into ions in aqueous solution. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड को बच्चे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ये वो एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में. आपने इसे पानी में मिलाया, सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है. तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स? बच्चे इसमें आप 3 ही एग्जांपल याद रखोगे. वन इज HCl, सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज HNO3. ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं बच्चे जो आपने याद रखने हैं. दे विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, और ये क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो दे विल बी एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनकी जो pH होगी, स्ट्रेंथ होगी, बहुत ज्यादा होगी. ऑलराइट. उसके बाद बच्चे वीक एसिड्स. एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के ऑपोजिट हैं. और बच्चे इनको डिफाइन करना भी आसान है. व्हाट आर वीक एसिड्स? दे आर एसिड्स व्हिच they are acids which incompletely dissociate. ओके. वीक एसिड्स कौन से बचे? विच इनकम्प्लीटली डिसोसिएट. ये पूरे का पूरा जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे आयंस में. एंड बचे व्हेन दिस हैपेंस, जब किसी एसिड में ऐसा होता है जहां पूरे आयंस डिसोसिएट नहीं हो रहे, वी विल से इट इज अ वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? पूरे आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. इज दिस क्लियर? ये डेफिनेशन सबको आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. ऑलराइट. तो बच्चे वीक एसिड के एग्जांपल देंगे हम. वीक एसिड में बच्चे आपके सारे नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे, जैसे लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. दीज आर एसिड्स व्हिच हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज. पर बच्चे इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है बहुत माइल्ड होती हैं. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा H+ आयन सोल्यूशन में नहीं बनाते. सो एसिड व्हिच इनकम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू H+ आयंस. ओके. तो बच्चे आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो. कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, लैक्टिक एसिड. ये बच्चे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स के, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते पानी के अंदर. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सी अरहाम, व्हेन वी वर डिस्कसिंग pH स्केल, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन दी एसिडिक रेंज, pH 5 एंड pH 6, ये दोनों एसिडिक रेंज है. पर बच्चे कैन वी से pH 6 इज मोर बेसिक एंड pH 5 इज लेस you can say basic. Sorry, pH 3 is less basic, more acidic. pH 5 is more basic, less acidic. तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि एसिडिक रेंज में ही देखेंगे हम. You can observe them in other also. Okay, just a moment. Okay. जस्ट मोमेंट. अर्चिशा ने बच्चे एक भेजा है क्वेश्चन. बच्चे आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी. मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ. इसमें आंसर दिया हुआ है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट.
पर बच्चे हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? ओके, पर सब में ही बेसिक बेसिक लगाया हुआ है बच्चे। magnesium has a tendency to react with oxygen. It undergoes corrosion naturally, so it will form an inert layer of magnesium oxide. और इसमें दिया हुआ है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक्चुअली बच्चे आई थिंक मैंने रेफरेंस बुक्स में और भी देखा है, उसमें बोला जाता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी लेयर होती है। अगर बच्चे मैं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखूं तो उसमें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही दिया हुआ है, ठीक है? सो वी विल पिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो हमें एनसीईआरटी में दिया है वो एक बार हम वही आंसर करेंगे। ऑलराइट हर्षिशा, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, चलो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओके, ऑलराइट। See Simran, common name of HNO3 is nitric acid. Yes, we call it nitric acid. आप इसको क्या बोलोगे फिर? हाइड्रोजन नाइट्रेट, and sulfuric acid will be called hydrogen sulfate, dihydrogen sulfate, monohydrogen nitrate. Yes, common name of HNO3 is nitric acid. Simran, that is absolutely right. These are their common names. सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना? अगर मैं H2SO4 बोलना चाहता हूं तो आई शुड से डाइहाइड्रोजन सल्फेट। नाइट्रिक एसिड इज मोनोहाइड्रोजन नाइट्रेट। तो HNO3 का जो कॉमन नेम है इट वुड बी नाइट्रिक एसिड। सिमरन, इज दैट क्लियर? सिमरन, ऑलराइट, ठीक है। सो वीक एसिड में बच्चे कार्बनिक एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया। Okay, all your weak acids will be organic acids, या जैसे कार्बनिक एसिड है उसको भी आप वीक एसिड में क्लासिफाई कर सकते हो। They will incompletely dissociate into H plus ions. For example, if I take a particular volume of water, yes, Alok, tartric acid is weak acid. जितने आपके नेचुरल एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, citric acid, ascorbic acid, malic acid and so on, they are all weak acids. Okay, क्योंकि जो आपके आएंगे कैटेगरी में मिनरल एसिड्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। हाँ जी सिमरन। सर, इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरल एसिड? HCl को बच्चे आप नेचुरल एसिड नहीं बोलोगे, it will come under the category of mineral acids. Sir, but it is found in our stomach as well. See, that is not the point when you classify. हम इसको HCl को मिनरल एसिड क्यों बोलते हैं बच्चे? जब इसकी फर्स्ट आइसोलेशन हुई थी ना, आप कह सकते हो जो मेजर इसकी आइसोलेशन जब होती है तो हम इसको नेचुरल सोर्सेस से नहीं, हमने इसे ऑब्टेन किया था। एक जो हम ये कैटेगरी दे रहे हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स, ऐसी कैटेगरी हमने क्यों बनाई थी? ये कैटेगरी हमने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry was based on the biomolecules which were obtained from living organisms. Okay, तो मैं ये मानता हूं कि HCl तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है स्टमक के अंदर, पर आप इसको मिनरल एसिड क्लासिफाई करते हो क्योंकि जब इनकी फर्स्ट इंस्टेंस हमने देखी थी तो नेचुरल सोर्सेस से इनकी मेन एक्सट्रैक्शन नहीं होती। इसके पीछे ये मेजर रीजन है। ठीक है सिमरन, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन है। एंड इट माइट एट टाइम्स सीम कंफ्यूजिंग, पर हमें ये चीज समझनी है कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई थी किस बेसिस पे हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच वर एक्सट्रैक्टेड नेचुरली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और व्हिच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। तो उस बेसिस पे इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लासिफाई कर दिया गया था। तो आप उसको मिनरल एसिड के बीच में ही रखोगे, यू विल नॉट कंसिडर इट एज ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड। ठीक है, देखो एक सीधी सी बात है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड, ठीक है, इवन कार्बनिक एसिड,
बच्चे इनसे आगे फर्दर मिनरल्स बनते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, जैसे सल्फेट सॉल्ट्स मिलते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स मिलते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलते हैं, फॉस्फेट सॉल्ट्स मिलते हैं। इसलिए हम इनको एक तरीके से इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में अगर आप देखोगे बच्चे, ऑर्गेनिक एसिड में आपके ये नेचुरल एसिड आगे जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह, इनके बच्चे हमें मिनरल थोड़ी मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में, दे आर फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो इसलिए भी हम इनको ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में डालते हैं। आई होप सिमरन माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। जैसे देखो सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनके तो हमें मिनरल सॉल्ट्स भी मिलते हैं ना आगे, सल्फेट सॉल्ट, फॉस्फेट सॉल्ट्स। लैक्टिक एसिड का लैक्टिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है। इनको ऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे ये हमें पहली बार ऑर्गेनिक सोर्सेस से मिले, और जनरली इनको हम अर्थ क्रस्ट में इनके सॉल्ट्स को भी नहीं देखते। ये भी एक रीजन हो सकता है, अलग अलग तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चे, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप सम कॉमन नेचुरल एसिड्स दैट वी ऑब्टेन। कर्ड में देखो, कर्ड के अंदर हमारे पास कौन से एसिड हैं? ओके, sulfuric acid lake is found as a lake in Indonesia. Okay, Alok, I am not aware about this lake. ये किसी वोल्केनो के साथ एसोसिएटेड है लेक, सल्फ्रिक एसिड लेक इन इंडोनेशिया। ओके, किसी वोल्केनो के साथ एसोसिएटेड होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे जो वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो तभी चांसेस हैं कि उधर वो जो लेक बनी है उसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा होगा। तो इट माइट बी अ वोल्केनिक लेक, यही रीजन हो सकता है। चलो कर्ड, तो बच्चे कर्ड जो है ओके, ऑलराइट, कर्ड के अंदर बच्चे लैक्टिक एसिड होता है। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, and this is the reason we say we should not store it in metallic utensils, क्योंकि it is going to react and it is going to become toxic, तो इसलिए हम इसको नहीं रखते मेटालिक वेसल्स के अंदर। उसके बाद है बच्चे कर्ड के बाद है एप्पल। इन एप्पल वी हैव मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, देन इन tamarind we have tartaric acid. Tamarind we have tartaric acid. Tartaric acid. All right. Then बचे in vinegar we have acetic acid. बचे इसका केमिकल नेम है एथेनोइक एसिड। All right, then ant sting, इसके अंदर होता है बच्चे formic acid. This is the chemical name, formic acid, also known as methanoic acid. All right, okay. In our muscles also we see presence of lactic acid. उसके बाद है बच्चे citrus fruits. सिट्रस फ्रूट्स के अंदर बच्चे दो टाइप के आपको कॉमन ऑर्गेनिक एसिड मिलेंगे, वन इज सिट्रिक एसिड, अनदर वन इज एस्कॉर्बिक एसिड। बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इज मेन कंपोनेंट ऑफ विटामिन सी। ऑलराइट, तो सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड आ गया और सिट्रिक एसिड भी है। ऑलराइट, तो आई थिंक ये कुछ बच्चे मेजर आपको ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो मिलेंगे obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ऑलराइट, ठीक है, ओके बच्चे। देन एक और हमने टर्म किया था बच्चे, डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो बच्चे एक क्वेश्चन था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। व्हेनेवर वी डू डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स की डाइल्यूशन हमें कैसे करनी है? एक्रोबिक एसिड। माधव, आई एम नॉट गेटिंग, एक्रोबिक एसिड बोल रहे हो कि एस्कॉर्बिक एसिड बोल रहे हो? बच्चे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज व्हाट वी
कॉल विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं। ओके, सो बच्चे व्हेन यू डू डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। So, bacha, there is a way when we have to dilute acids. For dilution of acids, we will pour acid drop by drop. We will pour acid drop by drop into water with constant stirring. Stirring के साथ। अब बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है? Why we are pouring acid drop by drop into water and not water into acid? It is for one simple reason. अगर बच्चे आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो पूरा का पूरा एसिड एक साथ पानी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा एंड इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू, वी ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। और उससे क्या होता है, आप जब कांस्टेंट स्टरिंग कर रहे हो तो हीट भी जो है वो लूज होती रहती है एंड द रिएक्शन इज अंडर कंट्रोल। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके, चलो बच्चे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आप अगर लेट से सपोज आपने एक रिएक्शन किया, लेट से यू हैव HCl गैस विच इज प्रोड्यूस्ड। ओके, हमने HCl गैस बनाई एंड दिस HCl गैस इट इज पास्ड ओवर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। बच्चे ये एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है। यू हैव टू टेक ड्राई HCl गैस एंड पास इट ओवर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। बच्चे व्हाट विल यू ऑब्जर्व? विल द कलर चेंज? ओके, सिमरन इज सेइंग नो कलर चेंज, आराम इज सेइंग नो चेंज। अब बच्चे व्हाई देयर इज नो कलर चेंज? क्यों कोई कलर चेंज नहीं होगा? क्योंकि बच्चे एसिड्स दे विल ओनली शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यही हमने डेफिनेशन में करा है। जब तक वो आप उसे पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक H+ आयन नहीं बनेंगे और वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। सो इफ यू टेक ड्राई HCl गैस and pass it over dry blue litmus paper, it is not going to change color. So what you have to do, you have to either take a moist blue litmus paper or you have to dissolve HCl gas in water, then only it will show its acidic nature. एक और बच्चे आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी थी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ग्लूकोज एंड अल्कोहल एंड HCl, इन सब में हाइड्रोजन है, दे ऑल कंटेन हाइड्रोजन। बट बच्चे हाउ विल यू प्रूव दैट HCl ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट इज ओनली एक्टिंग एज एसिड? अगर आपको ये बोला जाए all substances which contain hydrogen are not acidic, how will you prove this? मान लो लिटमस पेपर यूज नहीं करना, कोई और एक्टिविटी यूज करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? ओके, देवादत्तन इज एब्सोल्युटली राइट, यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्टिविटी भी दी हुई है आपको, यू हैव टू पास इलेक्ट्रिसिटी। वी विल नॉट यूज लिटमस, यू कैन यूज एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके देख लीजिए। बचे ग्लूकोज C6H12O6, अल्कोहल C2H5OH, HCl हाइड्रोजन, तीनों में हाइड्रोजन है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लूकोज और अल्कोहल भी एसिडिक है। हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग सोल्यूशन बनाएंगे, एक सेटअप बनाएंगे जिसमें हम करंट पास करेंगे विद बल्ब कनेक्टेड टू वन एंड। अगर बच्चे करंट पास होगा तो दैट विल इंडिकेट द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, व्हिच इज गोइंग टू हैपन ओनली इन केस ऑफ HCl, जहां H+ आयंस रिलीज होंगे और जब ये H+ आयन रिलीज होंगे तो उनसे करंट पास होगा। पर बच्चे ग्लूकोज और अल्कोहल में ये कंडीशन नहीं है, उनमें करंट पास नहीं होगा बिकॉज दे विल नॉट रिलीज H+ आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके सोल्यूशन बैड कंडक्टर है। सो बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी यू कैन प्रूव दैट एसिड्स are substances which will release H+ ion in solutions. Is this clear everybody?
सबको समझ आ गया? ये एक्टिविटीज आपको दी हैं, व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेस, उसमें दी हुई है ये एक्टिविटी, ठीक है ना? ऑल राइट, चलो ठीक है। सो बच्चे व्हाट विल डू नाउ इज, आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टॉप हियर, वी आर थ्रू विद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स हमने कर लिया है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमने एसिड्स की कर ली हैं। तो बच्चे जब हम अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, विल बी पिकिंग अप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बेसिस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे। ओके, सो प्लीज रिवाइज इट थ्रू, गो थ्रू इट। इस चैप्टर को बच्चे रिवाइज करना शुरू करो, because at the weekend I'll be putting a test based on this chapter, so please revise it through, इसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए। all right, चलो, so I'll be ending the session here बच्चे, see you all in the next class।